Hey everyone, in this video we are going to discuss today's Code Forces round 1113. It was a due to round. So in this video we will be discussing first four problems because these are the only four problems I was able to solve. So let's start with the first problem. You delete, I delete. So in this problem, Alice and Bob are given a binary string S of length n. It consists of at least one bit 0 and at least one bit 1. They each perform exactly one operation in the following order. First, Alice chooses an occurrence of 0 in S and deletes it. Then Bob will choose an occurrence of 1 in the resulting string and deletes it. Now Alice wants that the final string should be lexicographically as large as possible, while Bob wants it to be lexicographically as small as possible. Determine that the final string if both players act optimally. Okay, so the problem statement is pretty simple. You are given a string as it's a binary string, and now Alice and Bob will do exactly one operation. First, Alice will pick 0, an occurrence of 0, and deletes it from the string S, and then Bob will pick an occurrence of 1 from the string and deletes it. Now the way they wants to pick the occurrence of each of the bit is such that Alice wants that the final string S should be lexicographically as large as possible, right? And Bob wants to pick an occurrence of 1 such that he wants that the final string S should be as small as possible, right? So you need to find the final string after Bob and Alice. Each of them have done their operation. Okay, so let's take an example of any sample test case. So if we take this second sample and let's see what the final string will look like if Alice and Bob play optimally. Okay, so first turn is Alice. Alice will pick a bit 0 and she would like that the final string should be lexicographically as large as possible. So can you tell me which bit is the most favorable one? In this case both bits 0 are consecutive, right? So she can pick any one of these bits, it doesn't matter, right? Because either she picks this one, third or fourth, the after first operation the string will look like this, right? She can delete either third bit or fourth bit, right? So let's say she deletes the third bit, then the final string will be this after first operation. Now the second operation will be played by Bob. Now Bob will pick an occurrence of 1 and he would like to delete the occurrence 1 such that the final string after this operation should be as small as possible, right? So here we can see that there are 3 indices where occurrence of 1 is there. So first two are similar, right? He can pick either of them. Now the question is from picking either first two or the fourth one, right? Let's uh, take 3 cases, right? If he picks the first one, right, and deletes it, the final string will be 101. Let's say in the second cases, let's say if he picks the second bit, then it will be same as the first because they are consecutive, so it doesn't make any difference. Now this will make a difference. Let's say the third case is he picks the last bit and deletes it, then the final string will be this. So in all 3 cases, which final string is lexicographically as small as possible? Of course both of these, right? So our final string, which is 101, so you know that these two strings are lexicographically smaller than this string, so definitely Bob will pick either first or second,
occurrence of 1 and delete it. So it doesn't matter, any one of them he can pick. Let's say he picks the first and deletes it, the final string will be 101. So this is our answer. So after Bob and Alice play optimally, this is the final string which will be there. So we can say that this is our answer. So how you will solve this problem for a general string S, general binary string S? So you can see that what would be the favorable bit for Bob, right? So let's say, sorry, Alice. First operation will be played by Alice. So which is the favorable 0 bit for Alice such that the final string is as large as possible? So definitely you will say that she would like to delete the first occurrence of 0, right? So let's say if there is a string 0 1 0 1 1 0 0 1, so can you tell me, Alice will pick one of the 0th bit and delete it, which would be the most favorable one? Obviously you will say that the first occurrence will be favorable one. She will always pick the first occurrence of 0 and delete it, right? Then she can make sure that the final string will be as large as possible, right? So for Alice we know that she will always pick the first occurrence of 0. For second operation, can you tell me what favorable bit? Now for second operation will be played by Bob, so can you tell me which one bit will be the most favorable one, right? So you can tell me that yes, the first occurrence of 1 will be most favorable for Bob, because Bob would like to pick an occurrence of 1 and delete it, and he would like that the final string formed should be as small as possible. So definitely if you delete the first occurrence of 1, then definitely you are deleting a larger number from starting, and it will make your final string to be lexicographically smaller, right? So for Bob also, he will always pick the first occurrence of 1 and delete it. So yeah, so this will be our solution. Let's also see the code. In the code also we have done the similar thing, right? What we will do is we will skip the first occurrence of 0 and first occurrence of 1, right? Because first occurrence of 0 will be deleted by Alice and first occurrence of 1 will be deleted by Bob. Okay, and the rest of the string we will just print it, right? So this is what we have done here. If we encounter any 0 bit, we will check if 0 we have seen earlier. If we have seen 0 earlier, means it is already skipped, then we can print this bit, and also we will mark this flag 0 flag true, right? If u is means this current bit is 1, in that case we will say that if 1 is true, means it is it already skipped? Yes, then we will print this bit, otherwise we will not print it. And also we will mark this flag true because it already occurred here. Okay, so this is how we can solve this first problem. Let's move to the second problem, merge to match. So in this problem you are given two arrays a and b of length n and m respectively. All n plus m integers in these arrays are distinct. You can perform the following operation on a any number of times, possibly 0 or possibly 0. So in the first operation, so an operation will look like this. First you will choose two elements of a with values x and y, where x is less than or equals to y. Then you will delete these two elements from a, insert one integer z into a such that x is less than or equals to z and g is less than or equals to y. After performing all operations, you may arrange the elements of a in any order. At the end, you need to determine whether it is possible to convert a into b. Okay, so let's take an example. So I think you are able to understand this problem statement. It is pretty simple. You are given two arrays of length and nm, and you need to apply some number of operations on a. The operations are also very similar. You will pick two integers from array a, and you will insert any integer
lying between these two integers, that is x and y, right? So you will insert any integer g which is lying between x and y. At the end you need to find that is it possible to convert a into b by applying these kind of operations, right? Okay, so let's proceed to any of the sample test case. Let's say for example we took this sample test case, and let's see if it is possible to convert a into b. This is our n and m, this is our array a, right, and this is our array b. Okay, now we will apply some operations on array a. So how we can apply these operations? So first operation what we will do is we will pick 1 and 5, right? Let's pick 1 and 5 and delete these two integers and insert 4, right? So a will become 4 3 7, right? Now this is possible, right? It is a valid operation. Why? Because 4 is lying between 1 and 5, right? 4 is lying between 1 and 5, and we have deleted 1 and 5 from a and inserted 4. Okay, in the second operation what we can do is we can pick 3 and 7, right, and insert 6 4 6, right? Why is it a valid move? It is a valid move because 6 is lying between 3 and 7. Okay, so yeah, so finest array we obtained after two operations is a equals to 4,6, and that this is equals to b. So we can say that a can be converted to b. So our answer will be yes for this case. Great. Let's also take some other test cases. This one where the answer is no. Okay, so we have in the first operation we have 135 as a. Let's see if we can convert a into b, right? So let's try to convert a into b. So let's apply. So we do not see the occurrence of 2 in this array a. So what we will do is we will pick the first two integers 1 and 3 and insert 2. A will become 2, 5, right? Because 2 is lying between 1 and 3. 2 lies between 1 and 3. So we inserted 2 here. Now again we our b is 2, 4, right? So 2 we have obtained, right, from deleting 1 and 3. But these two integers are not equal. Let's say if you apply any other operation, then you will delete two integers and insert one integer. That will make the size of a less than b, right? So you can say that you cannot convert a into b by any possible move, right? You cannot convert. So your answer will be no for this case. Okay, so this is our answer. So let's see how you can solve this problem for a general given array a, a1, a2, a3, a4 up to an, right? And let's say any general b1, b2 up to bm. How you will solve this problem? Okay, so what we will do is let's first of all let's delete. So let's sort this array b, right? And now, so our final goal is that we want to convert all of the integers a, right, into all of the integers of b. By this what I mean is we want to convert a into b. We want to apply operations, some number of operations on a such that it is finally equal to b.
So by this, what do we mean is we need to make sure that each of the integers and in B must be there in A finally, right? So let's try to see what we can do here. So first of all, sort B, okay? Sort B. Assume that all of the integers are in increasing order. Bi is less than equals to Bi plus 1, okay? We have sorted B. Now what we will do is, let's iterate over all elements of B, right? For I equals to 0, I less than m, I plus plus, okay? Iterate over all elements of B. Okay, now what do we want here is, let's say we have this current element Bi. Now we want to make sure that Bi must exist in A, right? Bi should be there in A. So what we will do is, let's say we will also sort this array A, okay? Let's sort array A. Sort array A. Now what we will do here is, first of all we will check whether if B of I also taken another, let's say, instead of sorting to for easy implementation, what we can do is, for easily understanding, let's say A is a set, okay? This is a set and this is just a array we are going to iterate, okay? So here what you will do is, you will just check if B of I exists in set A, if B of I exists in set A, then what you will do is, you will just delete B of I from set A. It means delete B of I from set A, okay? Another case is, let's say B of I does not exist in set A. Now what you will do here is, as B of I doesn't exist in set A, what does this mean? It means that we will have to pick any two integers from set A, and the two integers from set A, let's say x, y, such that x is less than equals to Bi and y is greater than equals to x. We need to pick these two integers from set A, right, and delete these two integers, right? This will make sure that we have at least one occurrence of Bi in A, right? Okay, so our question is, how we can optimally pick x and y from set A, right, to apply this operation. So you can say that x we can definitely pick optimally, right? It is easy. Why? How is it so? Because you can always pick the smallest value in set A, right? So this is A dot begin, means the first element of the set A, okay? ये क्यों किया? मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमने ऑप्टिमली कैसे पिक कर लिया? वाई नॉट सम अदर एलिमेंट ऑफ सेट ए? ये इसलिए क्योंकि अभी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, हम इटरेट कर रहे हैं बी आई पर, राइट? सो बी आई का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, बी आई प्लस 1, बी आई प्लस 2, ये सारे ऑलवेज ग्रेटर देन बी आई होंगे, राइट? और जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है ये आगे कहीं भी काम नहीं आने वाला, राइट?
तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ऑफ सेट ए वो हम पिक कर लेंगे एज ए वैल्यू ऑफ एक्स। अब बात आती है कि वाई को कैसे पिक करोगे, राइट। कहने को तो आप कह सकते हो कि वाई को भी क्या करो, आप लास्ट एलिमेंट पिक कर लो, राइट। लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हम पिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो बी आई में कोई ऐसा इंटीजर आ जाए, राइट, कोई ऐसा इंटीजर आ जाए, लेट्स से सम बीजे, राइट, बीजे which is less than equals to this last element of set A, and this is greater than equals to some value in A, okay। और ये लास्ट एलिमेंट मान लेते हैं कि इससे मतलब सेट ए में बाकी इस एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट ऑलवेज लेस देन बी हैं, बी जे हैं। आर यू गेटिंग मी? मैं कह रहा हूं कि मान लो ए की एलिमेंट ऐसा है लास्ट, राइट, जो कि सेट ए में है, और उसको अगर हम डिलीट कर देते हैं, देन लेटर एट एनी पॉइंट अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है बी ऑफ जे सच दैट बी ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, और बाकी सारे एलिमेंट सेट ए के सारे बी जे से छोटे हैं, तो हम बी ऑफ जे क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर, हम ए को बी के इक्वल बना ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऑप्टिमली पिक करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ वाई, राइट, सच दैट हम बाकी सारे एलिमेंट्स ऑफ बी हैं वो क्रिएट कर पाएँ। सो ऑप्टिमली कैसे पिक करोगे, हम क्या करेंगे ना, हम इन वाई को हम बाद में देखेंगे, मतलब बाद में पिक करेंगे, राइट। पहले हम सिर्फ एक्स को सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्स पता है कि हम एक्स तो स्मॉलेस्ट पिक कर लेंगे, क्योंकि ये तो बाद में कभी कहीं काम नहीं आने वाला, राइट। क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट हैं बी जे विच आर ग्रेटर देन बी आई, सो ऑब्वियसली वो तो बड़े हैं, बड़े एलिमेंट हैं, सो देयर लोअर एलिमेंट शुड ऑल्सो बी greater than equals to x, right, that is first element of a। so हमें x की वैल्यू पता है कि हम ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट लेंगे, और सेकंड वैल्यू अभी नहीं पता क्योंकि ये ऑप्टिमली पिक करनी पड़ेगी, बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमें ऑप्टिमली पिक करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक अलग से सेट में रख लेते हैं, टू रिमूव बन करके एक सेट बनाते हैं, और उसमें ये वैल्यूज़ डालते जाते हैं कि भाई लेटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम सेट में बी आई वैल्यू डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक वैल्यू वाई डिलीट करनी है एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी आई। हमें एटलीस्ट एक इंटीजर चाहिए फ्रॉम ए, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन बी आई। तो हम y की वैल्यूज़ जो बाद में डिलीट करने वाले हैं, ये एक टू रिमूव करके एक सेट बना लेते हैं और उसमें डालते जाएंगे, राइट। सो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इस पूरी अरे पूरी अरे बी पर इटरेट कर लेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने इस असेंशली क्या किया, एक बार फिर से लेट मी रीइटरेट वंस अगेन। सो व्हाट वी हैव डन इज, इफ वी हैव चेक दैट इफ द ith एलिमेंट इन बी एग्जिस्ट इन सेट ए, we do not have any problem, we will just delete bi from set a, right। हमारा काम इधर ही खत्म हो गया। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि लेट्स से इफ bi doesn't exist in set a, अब हमें कोई दो इंटीजर पिक करके उनको डिलीट करना है और bi को ऐड कर देना है, bi को फॉर्म कर देना है। बट अब बात आती है कि x और y आप ये कौन कौन से एलिमेंट पिक कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबल सिचुएशंस तो सारी हैं, कोई भी पेयर पिक कर सकते हो such that x is less than equals to bi and y is greater than bi। बट कोई भी पिक कर लोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी ऐसा दो इंटीजर पिक कर लिए सच दैट वो लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम काम आ सकते थे, तो हमें थोड़ा ऑप्टिमली पिक करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू हमने अभी भी देखा कि x की वैल्यू ऑप्टिमली क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि यही जो एलिमेंट है जो बाद में काम नहीं आने वाला, राइट। काम आएगा भी तो भी सारे बीजे जितने भी लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो एलिमेंट आने वाले हैं बी में, वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी आई होंगे,
राइट। सो वो इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से जितने बड़े एलिमेंट होंगे उनसे इजीली फॉर्म हो जाएंगे, राइट। सो x की वैल्यू हमें पता लगी, दैट इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द सेट। y की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि ऑप्टिमली पिक करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए एक अलग से सेट में डाल देते हैं टू रिमूव करके, राइट। और एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर इटरेटिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन b हम देखेंगे कि इसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं, ओके। सो मान लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आती है कि bi डजेंट एग्जिस्ट इन सेट ए, ऑल्सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट इज ग्रेटर देन bi। अब क्या करोगे, अब बना सकते हो bi को, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट दैट इज द स्मॉलेस्ट वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन bi। तो आप बोल दो कि उस केस में हम a को b में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि bi आप बना ही नहीं पाओगे, तो उस केस में आपका आंसर नो हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने पूरी अरे को इटरेट कर लिया, सिर्फ यही 3 केसेस बनेंगे। अब आते हैं कि इस अरे को, टू रिमूव अरे को प्रोसेस करना है। बेसिकली हमें ये जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें उन सब में से उनको सबको पिक करेंगे और जो सेट ए होगा इसमें से हम जस्ट ग्रेटर वैल्यू को डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस लेट्स से इस टू रिमूव अरे पर इटरेट करते हैं, वह इस सेट पर इटरेट करते हैं और हम क्या करेंगे, जस्ट जो bi से जस्ट बड़ा एलिमेंट है ए में उसको डिलीट कर देंगे, राइट। सो ऐसे करते गए अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा आता है, राइट, लेट्स से अगर bi जो भी कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इसको bi बोल देते हैं, लेट्स से आपका जो जस्ट बड़ा एलिमेंट है bi से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सेट ए में, उस केस में आप क्या कर दोगे कि वी डू नॉट हैव ए पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट, क्योंकि आपको ऐसा y मिला ही नहीं जो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू bi हो, राइट। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आपका आंसर नो हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू आर एबल टू प्रोसेस दिस अरे टू रिमूव अरे कंप्लीटली देन यू विल से दैट योर आंसर इज यस। अब एक बात आती है कि आप ये बोलोगे कि चलो हमने बी अरे में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स को हमने ए में फॉर्म कर दिया, राइट। अब आप बोलोगे कि यार एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है ना कि अब भी बी के सारे एलिमेंट तो लाई कर रहे हैं ए में, सेट ए में, राइट, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि साइज ऑफ ए इज स्टिल ग्रेटर देन bi, स्टिल ग्रेटर देन साइज ऑफ ए। ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ एलिमेंट अभी बच गए हों, राइट। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमें कोई भी चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता, क्योंकि अब हम जो भी एलिमेंट ए में ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं उसको हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका अरे जो फाइनल बचा है, मतलब जो सेट बचा है फाइनल आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑपरेशंस, वो ऐसा कुछ है, लेट्स से 1 2 3 4 4 5, राइट। सेट इधर मल्टी सेट लेंगे, एक्चुअली डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है इसमें, है ना। तो ए लेट्स से ऐसा दिखता है और बी ऐसा कुछ है हमारे पास, लेट्स से 3 4 एंड 5। अब आपको चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि आप बचे हुए एलिमेंट जो भी है ना रिडंडेंट है उसको आप डिलीट कर सकते हो। कैसे, लेट्स से आप 1 नहीं है, 1 नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, 1 एंड 3 को पिक करो, 1 के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट पिक करो जो ऑलरेडी बी में लाई कर रहा है, तो आप इन दोनों को डिलीट कर दो, इन दोनों को डिलीट करके 3 डाल दो, वापिस से डाल सकते हो ना, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। सो आप 1 और 3 को डिलीट करके 3 डाल दो अगेन। अब आपको 2 भी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पिक करो और दोनों को डिलीट करके 3 डाल दो वापस से। ऐसे ही आप 3 और 4 को पिक करो, राइट, और 3 और 4 को पिक किया तो आप दोनों को डिलीट करके वापस से 3 डाल दो, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। सो आपकी एक 4 की एक अकरेंस भी उड़ा दी, ये भी उड़ा दी, ये भी उड़ा दिया, तो फाइनली आपका क्या बचा, फाइनली आपका बचा 3 4 5, right? So this is how you can solve this problem. If you are still not able to understand, let's see the code. कोड में हमने भी यही किया जो अभी भी जस्ट डिस्कस किया है। तो क्या किया हमने, एक मल्टी सेट बनाया, राइट, उसमें हमने सारी वैल्यूज ऑफ ए को इंसर्ट कर दिया, अरे बी ली,
right, vector of b, and inserted all the values of b and sorted the vector b. Okay, we also took a vector to remove. To remove क्या consist करेगा? To remove will consist of all the values of y which are yet to be deleted. All the values of y which are yet to be deleted from set A. Okay, so हमने to remove इधर लिया और अब हम a वेक्टर b पर इटरेट करते हैं, right? So we will check that if this current element u exists in A, right? If it exists in A, then we will just delete this occurrence of u from A, right? We don't need to do anything else. Otherwise, let's say if u does not exist in A, then definitely we will have to apply an operation where we will pick two integers x and y such that x is less than equals to u and y is greater than equals to u. सो फर्स्ट हमने x कैसे चूज करेंगे वो हमने देख लिया था कि हम स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ सेट को चूज करेंगे ऑब्वियसली। और अगर मान लीजिए कि अगर सेट एम्प्टी हो गया अभी से, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा कि हम भाई u को बना ही नहीं पाएंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ऑलरेडी ग्रेटर देन u, बट हमारा x तो लेस देन इक्वल्स टू u होना चाहिए, दैट इज द करंट एलिमेंट इन bi। सो अगर जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ the first element in this set A is greater than u, then also your answer is no. Just print no and return from this loop. Okay, return from this function. अगर otherwise एक और केस क्या है कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू दिस करंट एलिमेंट इन बी, उस केस में हाँ आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू आपको पता लग गई, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, आप उसको डिलीट कर दोगे फर्स्ट एलिमेंट को, और y की वैल्यू आप लेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिलीट करोगे, तो उसके लिए आप ये एक बार प्रिजर्व करके रख लोगे टू रिमूव वेक्टर में कि भाई वी विल रिमूव इट लेटर। ओके, अब हमने b को प्रोसेस कर लिया। इफ वी आर एबल टू प्रोसेस b देन इट्स गुड, राइट? देन वी विल मूव टू आर टू रिमूव वेक्टर, that is we still have some values corresponding to y which needs to be deleted from vector A. So इसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पिक करोगे? सो जो करंट एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या पिक करोगे? ऑब्वियसली जस्ट बड़ा एलिमेंट डिलीट कर दो, राइट? सो आप a में से a डॉट लोअर बाउंड ऑफ u को पिक किया, अगर ये एंड आ गया कि भाई a से जस्ट बड़ा u से जस्ट बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका आंसर नो हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको इरेज कर दो। At the end, if you are able to process all the elements of to remove, then your answer is yes. Okay, so this is how we can solve this. Let's move to the third problem, maximize the score. In this problem, you are given an array A of length 2n. Each integer from 1 to n occurs exactly twice in array A. Initially, your score is 0. You can repeatedly perform the following operation while A is not empty. What you will do is you will choose an integer x that is present in A. Let L and R be the indices of leftmost and rightmost occurrences of x in the current array respectively. If x occurs only once, then your left and right indices will be equal. Now what you will do is you will add r minus l plus 1 whole square to your score, and you will also delete all the elements from index L to R from A, and the remaining elements are concatenated without changing their order and re-indexed starting from 1. At the end, you need to find the maximum possible score after making the array empty. Okay, so the problem statement is pretty simple. What does it say is, you are given an integer array A where each element from 1 to n occurs exactly 2 times in array A. Okay, now you will apply some number of operations. Obviously, in each operation what you will do is you will pick an integer x that is lying in array A. Okay, and if there are two occurrence of this integer x in array A, then what you will do is you will delete all the elements between these occurrences, right? And your answer will be
the number of elements between these two occurrences of a to the square. Okay, that is, your answer will be increased by square of the number of elements between these two occurrences of integer x, and you will delete all these integers from between these two occurrences and itself, x itself also. Okay, now you will keep on applying this operation as long as a is non-empty. At the end you need to maximize your possible score. Okay, so how you can solve this problem? Let's take an example. Let's say we pick this as a sample test case as an example. So this is our value of n, right? We have an array A of size 2n, and here we can see that each integer 1 and 2 is 1 and 2 occurs exactly twice in this array A. Okay, so our score initially is 0, right? So first optimal operation we can apply is, let's say on the first time what we will do is we will pick integer x equals to 1. Okay, and here what you will do is you will delete the occurrences, all the integers between these two occurrences, and your answer will be increased by the number of integers between these two occurrences, that is 3. 1, 2 and 3. 3 integers are there, right? So your answer will be increased by 3 square, right? And you will delete 1, 2 and 1. Your final array will be only 2 will be there, right? This last element. On the second operation you have only one choice, that is x equals to 2, right? You will delete this, so your answer will be increased by 1 square, because there is only one element between these two occurrences, right? Means L equals to R, right? Here in this case L equals to R equals to 1, right? So you only have one remaining element, so your answer will be increased by 1 square. So final maximum score you are able to obtain is 9 plus 1 10. Okay, so this is our maximum possible this is the maximum possible score for this array A, that is 10. Okay, let's take an example of this second sample to understand it better. In this case you can have your answer greater than 10, right? So initially your score is 0. Initially your score is 0. On the first operation, let's say there are two possibilities right here. Either you can apply first operation on x equals to, so we will discuss both cases, right? Case 1, where in first operation we pick 1. Now your score will be increased by 4 square, right? So, and you will delete all these elements, so your array will be after first operation empty. Now you cannot apply any other operation, so in this case your answer is 16. But let's say on let's take an example of another case where initially score is 0 and on the first operation you pick x equals to 2. Now you will delete these two occurrences and your score will be increased by 2 square. Okay, and your final array will be 1, 1. On the second operation you will obviously pick x equals to 1 because 1 is the only element remaining in this array, and you will delete these two occurrences of 1, 1, and your answer will be increased by 2 square. Your final answer is 4 plus 4 8. So so there are only two cases, right? So which case you will pick for maximizing your score? Obviously you will pick this one, because if you pick x equals to 1 in the first operation, then you are able to maximize your score, that is 16. But if you pick x equals to 2 in the first operation itself, then you are able to make your final score to be 8. So definitely you will go with this case. ओके, सो अब हम, अच्छा तो इसका आंसर 16 ही होगा, वी कैन ऑल्सो वेरीफाई. ओके ग्रेट.
Now let's say how you will solve this problem for a general integer n and an array a, right? इसको कैसे सोल्व करोगे? आपको a1 a2 अप टू a2n-1 एंड a2n ये दिया हुआ होगा, एंड each integer from 1 to n occurs exactly twice, right? Exactly 2 times in this array A. This is given in the problem statement itself. Okay, अब आ जाते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको. सो अभी ऊपर हमने देखा, लेट्स से अगर मान लीजिए कि आपका कोई इंटीजर x है वो ऐसे लाई करता है और कोई इंटीजर y इसके बीच में लाई कर रहा है, और मान लीजिए कुछ कुछ इंटीजर्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं. सो आप मुझे बता सकते हो पहले x को पिक करोगे या पहले y को पिक करोगे? आप बोलोगे कि चलो एक बार पिक करके देख लेते हैं दोनों केस के लिए. पहला केस मान लेते हैं आपने x को पिक किया, तो आपका आंसर क्या होगा, राइट? तो आपका आंसर होगा उस केस के लिए, मान लेते हैं कि एक बार इन दोनों के बीच में इंटीजर्स कुछ a आते हैं, राइट? और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करते हैं. अगर आपने x को पिक किया तो आपका स्कोर इन दोनों के बीच में लेट्स से x a बोल देते हैं, या फिर n काउंट 1 बोल देते हैं, c1 बोल दो स्मॉलर. ओके, c1 इज द काउंट ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन these two occurrences of y, राइट? एंड टोटल मान लेते हैं कि c2 है. x इन दोनों द occurrences ऑफ x के बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? c2 हैं. तो अगर आप पहला केस अपन लेते हैं कि लेट्स से इफ यू पिक x, तो आपका स्कोर किससे कितना इंक्रीज होगा, राइट? अगर आप x को पिक करते हो तो आपका स्कोर क्या होगा? c2 स्क्वायर, राइट? और दूसरा अब x को पिक कर लिया तो सारे डिलीट हो ही जाएंगे. दूसरा केस क्या है कि लेट्स से अगर आप y को पिक करते हो, राइट? अगर y को पिक करते हो तो आपका स्कोर कितना इंक्रीज होगा? पहले y को पिक करते हो देन x को पिक करते हो, तो आपका स्कोर कितना इंक्रीज होगा? तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा c1 स्क्वायर. अब आपने पहले y को पिक किया, राइट? इसमें क्या किया, x को पिक किया तो सारे उड़ ही गए, क्योंकि आपने सब को डिलीट कर ही दोगे, आपका आंसर इंक्रीज होगा c2 स्क्वायर से. अब पहले आप y को पिक करोगे देन x को, ये दूसरा केस है. तो पहले y को पिक किया, आपका आंसर इंक्रीज हुआ c1 स्क्वायर से, और आपने सारे इंटीजर को डिलीट कर दिया जो कि इन दोनों करेंसीज के बीच में लाई कर रहे थे. अब ये सारे डिलीट हो चुके हैं, राइट? इसके बीच में जितने भी थे, अब बच गया इतने सारे एलिमेंट. अब आपने x को पिक किया और इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया. अब आपका स्कोर किससे इंक्रीज होगा? आपका स्कोर होगा नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन दीज टू occurrences. कितने लाई कर रहे हैं? c2 माइनस c1, क्योंकि c1 तो उड़ गए ना इधर, पहले आपने y को पिक कर लिया था, इसका स्क्वायर. अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर केस है, तो इसको क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे ऑब्वियसली. c2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर माइनस 2c1 c2. आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू विच वन इज ग्रेटर? कैन यू टेल मी विच वन इज ग्रेटर? So I will say that c2 is greater. c2 square is greater. यही ग्रेटर है, राइट? क्योंकि c1 स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो c2 स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं. ये आपका आ गया 2c1 स्क्वायर माइनस 2c1 c2, राइट? ये आपका हो गया 2c2 स्क्वायर प्लस
2c1 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बीच में बन गया c1 माइनस c2। अब आपको पता है कि c1 माइनस c2 तो एक नेगेटिव वैल्यू है, राइट। सो ये नेगेटिव है तो आपका ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो बेसिकली आपका दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली c2 स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, -2c1 इंटू c2 माइनस c1, राइट। बेसिकली आप माइनस को बाहर ले आए, राइट। सो अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, c2 बड़ा है आपका, राइट। सो अब आप कह सकते हो कि आपका c2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 ये आपका c2 स्क्वायर से छोटा है, राइट। दिस इज लेस देन c2 स्क्वायर। सो इससे क्या पता लगा हमें कि ऑलवेज ये वाला फर्स्ट वाला केस पिक करना बेटर रहेगा, कि अगर x, x के बीच में कोई y, लाई कर रहा है तो हम ऑलवेज लार्जर रेंज वाला जो सेगमेंट है उसको पिक करेंगे ऑलवेज। सो ये वाला केस पिक करेंगे। अब आते हैं और अदर केसेस बच गए। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स वाई एंड एक्स वाई, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके लिए आपको कोई भी पिक कर सकते हो, राइट। वो आपको डीपी से सोल्व करेंगे इसको। इस केस में हम डेफिनेटली पता नहीं लगा सकते इसके केस से कि इसके बीच में मान लो कोई भी एलिमेंट है। अब ये हम नहीं बता सकते कि ये वाला बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा, पहला कौन सा पिक करना चाहिए। ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, राइट। इसको हम डीपी से सोल्व करेंगे, बट ये हम डेफिनेटली बता सकते हैं क्योंकि ये हमने देख लिया इधर कि फर्स्ट वाला केस ऑलवेज बेटर रहेगा। अब आते हैं हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। अब हम क्या करेंगे ना, हम ये जो अरे है ए फ्रॉम 1 to 2n, इस पर हम डिप्पी लगाएंगे, राइट। कि हम क्या करेंगे, डिप्पी ऑफ 2n, राइट, ये बना लेते हैं। और डिप्पी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्पी ऑफ आई, सो डिप्पी ऑफ आई what does it represent? dp of I, it represents the score we can obtain from the array from index I equals to 1 to I, right, from index 1 to I। अगर इफ वी ओनली कंसिडर द अरे फ्रॉम 1 to I, इसको डिलीट करने के लिए, इसको डिलीट करने के बाद जो हमारा स्कोर बनेगा, वो स्कोर मैक्सिमम स्कोर जो बनेगा वो अपना डिप्पी ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब आप इस पर ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करोगे, राइट, हाउ यू विल कैलकुलेट डिप्पी ऑफ आई। सो आपके ट्रांजिशंस विल लुक लाइक दिस। डिप्पी ऑफ आई क्या होगा, दो पॉसिबल केस हैं, या तो आप ith एलिमेंट को अकेले डिलीट कर दो, राइट। लेट्स अज्यूम दैट आई का अकरेंस पीछे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। या फिर दूसरा हो सकता है कि आई का अगर पीछे कोई अकरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए ऑफ आई का कोई अकरेंस अगर पीछे लाई कर रहा है, ये है 1 2 3 4, डिप्पी ऑफ आई कैलकुलेट करना है हमें। डिप्पी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम स्कोर वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम 1 to I। सो अगर दो केस है यहाँ पर, या तो आई का पीछे कोई अकरेंस है ही नहीं, उस केस में आपका आंसर क्या होगा, डिप्पी ऑफ आई -1 + 1, क्योंकि इस अकरेंस है ही नहीं तो सिर्फ इसको अकेले डिलीट करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि कोई पीछे अकरेंस जे लाई कर रहा हो, कोई हो अकरेंस जे सच दैट ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। इस केस में आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि इन दोनों इस रेंज को पिक कर लोगे, इसको पूरे को डिलीट कर दोगे। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली i - j + 1
whole square plus dp of j minus 1, right? So इसके transitions will look like dp of I minus 1 plus 1 comma I minus j plus 1 square I minus j plus 1 square plus dp of j minus 1. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व। और आपका आंसर क्या होगा? dp ऑफ 2n, dp ऑफ 2n आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। लेट्स ऑल्सो सी द कोड। आप एक चीज़ इधर पता लगा सकते हो कि ये वाली चीज़ कैसे काम आ रही है इधर। हम इस पर डिप्पी एक्चुअली लगा कैसे पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो इसको? हम डिप्पी इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास करंटली आई इंडेक्स के लिए हमें पता लगाना है कि 1 to i में हम मैक्सिमम स्कोर कितना बना सकते हैं। तो 1 to i के लिए सिर्फ यही मैटर करता है कि आप इसको उड़ा दो। इन दोनों को अगर उड़ा दोगे ना तो बीच वाले सारे एलिमेंट उड़ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? लेंथ ऑफ दिस, राइट, मीन्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन these two occurrences का स्क्वायर प्लस dp ऑफ दिस इंडेक्स, राइट। अब इधर ये वाली वैल्यू मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन काम आई है इधर। ये वाली ऑब्जर्वेशन कहाँ काम आई इधर? ये इधर काम आई कि ऐसा भी हो सकता था ना कि आप सिर्फ इन दोनों को उड़ाते टाइम आप सिर्फ इन्हीं को क्यों उड़ा रहे हो, इन पूरी अक्रंस को क्यों उड़ा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच में x कोमा x लाई कर रहा था, लेट्स से बीच में x कोमा x लाई कर रहा होता, आप पहले इन दोनों को उड़ा देते फिर इस पर उड़ा देते। बट वो तो हमने देख लिया कि अगर इन दोनों अक्रंस के बीच में कोई भी इक्वल पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ऑलवेज यही बेटर होगा, ऑलवेज यही बेटर केस होगा। सो ये प्रूफ हमारा इधर काम आया है, इधर काम आया है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व इट। लेट्स ऑल्सो सी द कोड। ओके, द कोड इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमने ए इनपुट ले लिया ए अरे को और इंडेक्स अरे में स्टोर कर लिया। फॉर ईच एलिमेंट ए आई उनकी फर्स्ट अक्रंस हमने इंडेक्स अरे में स्टोर कर ली। क्या स्टोर किया है कि फॉर ईच इंटीजर फ्रॉम 1 to n देयर फर्स्ट अक्रंस इंडेक्स अरे में स्टोर कर ली, राइट। लेट्स से इफ यू वांट टू चेक x की फर्स्ट अक्रंस, सो इंडेक्स ऑफ x इज देयर फर्स्ट अक्रंस इन दिस अरे a। ओके, और एक डीपी अरे ले ली 2n साइज की। अब इस पर इटरेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2n टू कैलकुलेट ऑल ऑफ देयर डीपी स्टेट्स। अब डीपी ऑफ i कैसे निकालेंगे? दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आई का अक्रंस पीछे एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। अदरवाइज दूसरी केस में क्या हो जाएगा? लास्ट अक्रंस, दूसरे केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे केस में हमारा आंसर यही हो जाएगा आई माइनस जे प्लस 1 टू द स्क्वायर प्लस डीपी ऑफ जे माइनस 1। अब जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू है मतलब जो पहले प्रीवियस अक्रंस ऑफ ए ऑफ आई, प्रीवियस अक्रंस ऑफ ए आई क्या है? इंडेक्स ऑफ आई डी एक्स ऑफ ए ऑफ आई, राइट। सो वही क्या हमने आई माइनस जे प्लस 1 इंटू आई माइनस जे प्लस 1 प्लस डीपी ऑफ जे माइनस 1। ओके, एट द एंड डीपी ऑफ 2n हमारा आंसर हो जाएगा। So this is how we can solve this. Let's move to the fourth problem of today's contest. This problem is good pair queries. So you are given two binary strings s and t, both of length n. For two binary strings a and b of the same length, pair a comma b is called good if strings can be made empty by performing the following operation 0 or more times. Choose a non-empty set of positions, right, from A and a character C 0, 1. Let x be the this sequence subsequence, y be this subsequence. The character C must be a mode of both x, y. Delete the characters at the chosen positions of the from the both strings.
The remaining characters are concatenated without changing their relative order. A binary string may have both 0 and 1 as modes. You need to answer Q queries. In each query, you are given two integers L and R. Determine whether the pair of substrings from L to R from S and T is good. The queries are independent. Okay, so if you see, the problem statement is pretty straightforward. It is given that we are given two strings S and T of equal length, right, and both are binary strings. Now let's say here is the definition of whether a pair of strings is good or not. When will you say that a pair of strings A comma B is good? There are two conditions. First is the length of A and length of B should be equal. Second condition is, right, the same length. Second condition is that it should satisfy this. It should satisfy this operations. What do I mean by these operations? It is saying that you should be able to empty both of these strings A and B by applying these operations. Now what are these operations? In each of the operation, what you can do is you will pick a subsequence of indices from A, right, and you will delete all the occurrences of all the elements corresponding to these indices, right. Now deleting this condition is the valid condition is that the mode bit in A and B should be equal corresponding to these chosen indices. ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये ऑपरेशन ही थोड़ा क्रिटिकल है. ये ऑपरेशन क्या कहता है ना कि एक वैलिड ऑपरेशन वही होगा कि अगर आप क्या करोगे, एक सबसीक्वेंस पिक करोगे, सबसीक्वेंस ऑफ इंडिसेस पिक करोगे अरे ए में से, और आप इन दोनों स्ट्रिंग्स में ए और बी में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिलीट कर दोगे करस्पॉन्डिंग टू दिस इंडिसेस, राइट. और आप डिलीट तभी कर सकते हो जब ये आपका सबसीक्वेंस जो पिक किया है ये वैलिड होगा. वैलिड का केस क्या है? वैलिड का केस यही है कि द मोड ऑफ बिट इन ए करस्पॉन्डिंग टू दीज इंडिसेस शुड बी इक्वल टू मोड बिट ऑफ द इंडिसेस इन स्ट्रिंग टी, राइट. और मोड बिट आपको निकालना पता ही होगा. मोड मतलब जो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो रही हो, 0 और 1 में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही होगी वही आपकी मोड बिट हो जाएगी, राइट. और अगर इक्वल होंगे, लेट्स से काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 इक्वल हुई, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हुई, उस केस में आपका मोड क्या होगा? कोई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल केसेस हैं, राइट. 0 भी हो सकता है आपका मोड और 1 बोथ हो सकते हैं. अगर मान लेते हैं कि 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन इंडिसेस में तो आप बोल दोगे कि 0 मोड है. अदरवाइज़ 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 1 बोल दो कि 1 मोड है. तो आपको क्या करना है कि अगर दोनों में मोड सेम है तो आप, ये वैलिड ऑपरेशन है, आप दोनों में से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस इंडिसेस, और रिमेनिंग जो करेक्टर्स बचेंगे उनको आप कॉन्कैटिनेट कर दोगे. सो ये ऑपरेशन आप अप्लाई करते जाओगे अंटिल ए एंड बी बोथ आर एम्प्टी, राइट. सो आपको बताना है कि अगर आप एम्प्टी कर सकते हो देन यू कैन से दैट ए कोमा बी इज ए गुड पेयर. अब आपके पास कुछ क्वेरीज दे रखी हैं, आपको एक सब एल टू आर एक रेंज दे रखी है, आपको बताना है कि एल टू आर के बीच में जो सब स्ट्रिंग है फ्रॉम एस एंड टी, इज इट ए गुड पेयर और नॉट. Okay, so let's try to understand it with the help of an example. Let's take this as an example. Okay, so इधर देखते हैं. हमें स्ट्रिंग S ये है, हमारे पास S स्ट्रिंग ये है, T स्ट्रिंग है, नहीं स्ट्रिंग S हमारे पास 0 1 है, राइट, एंड स्ट्रिंग T है 1 0, और हमारे पास
n इक्वल्स टू 2 एंड q इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। ये दो क्वेरीज हमें दे रखी हैं, राइट। ओके, सो 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 का मतलब क्या हुआ, s ऑफ 1 1 दैट इज 0, t ऑफ 1 1 दैट इज 1। आपको बताना है कि ये जो s11 एंड t11 जो सबस्ट्रिंग हैं दोनों, ये गुड पेयर हैं या नहीं। ओके, सो ये तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसमें अब ओब्वियसली एक एक एलिमेंट है, तो आप एक पहला ही ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो वो इनवैलिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें मोड क्या है, इसका मोड क्या है, 0 है, और इसका मोड क्या है, 1 है। अब आप देख सकते हो कि दोनों का मोड डिफरेंट बिट है, तो आप ऑपरेशन अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इस पर आप एक भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दिस केस आप बोल दोगे कि दिस इज नॉट ए गुड पेयर। तो इसका आंसर नो हो जाएगा, राइट, पहले केस का। अब सेकंड है 1,2, राइट, l इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2। तो इस केस में आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है, तो आपको बताना है कि s कोमा t गुड पेयर है या नहीं, राइट। सो s आपका है 0 1, t आपका है 1 0। तो चलो अब इस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं सच दैट हम एम्प्टी कर पाते हैं या नहीं। तो अब मुझे बताओ कि पहला ऑपरेशन में आप इंडेक्स क्या चूज करोगे, 1,2 इंडेक्स चूज करोगे। तो अब मुझे बताओ कि s अगर 1,2 इंडेक्स चूज करते हो, मतलब सारी कंप्लीट स्ट्रिंग ही आप चूज कर ली, तो आप इसका मोड क्या है, आप बताओ कि 0 भी मोड हो सकता है और 1 भी, दोनों पॉसिबल केस हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो दोनों ही हमारे मोड हो सकते हैं। इसमें 1,0 में इसमें भी सेम है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है मोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, ये एक वैलिड ऑपरेशन है। आप 1,2 की करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो आपका ये क्या बन गया, एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई। एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई तो आपका आंसर इस केस में यस हो जाएगा कि यस देयर इज ए वे टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड टी। तो इस केस में आपका ये आंसर यस हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब आते हैं कि कोई जनरल अरे, कोई जनरल स्ट्रिंग s दे रखी है आपको, कोई जनरल स्ट्रिंग t दे रखी है, और अब आपको बताना है कि इज देयर ए पॉसिबल वे टू डिलीट s and t, okay, to delete all elements of s and t by applying some number of operations। okay, अब इसको कैसे चेक करें, तो आप पहले एक चीज़ चेक करो, पहले आप मोड चेक कर लो। अब मुझे बताओ कि मोड होता क्या है एक्चुअली, मोड ऑफ s क्या होता है। मोड ऑफ s आप बताओगे कि भाई मोड ऑफ s क्या होता है ना, काउंट ऑफ आप क्या बोलोगे कि काउंट ऑफ 0, लेट्स से काउंट ऑफ 0 इन s अगर ज़्यादा हुआ काउंट ऑफ 1 इन s, s को ऐसे लिख देते हैं, समझ आ रहा है ना। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका मोड इक्वल है या नहीं। तो मोड चेक करने के लिए वही करेंगे कि अगर काउंट ऑफ s में 1 का काउंट अगर ज़्यादा है 0 के काउंट से, तो आपका 1 मोड हो जाएगा इसमें। और अगर 1 का काउंट लेस है 0 के काउंट से, तो आपका 0 मोड हो जाएगा। सिमिलरली आप टीम भी चेक कर लोगे, तो आप देखोगे कि अगर दोनों का मोड इक्वल है s और t का, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। इफ मोड ऑफ s इज इक्वल्स टू मोड ऑफ t, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है कि मोड ऑफ s इज नॉट इक्वल्स टू t। इन दिस केस मान लो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि मोड ऑफ s आपका 1 है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मोड ऑफ s अगर 1 है, मोड ऑफ t 0 ही होगा। ओके,
अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि एस और टी आप एम्प्टी कर सकते हो या नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे ना कि मोड ऑफ एस वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एस में वन के करेंसीज ज़्यादा हैं, टी का मोड जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि टी में जीरो के करेंसीज ज़्यादा हैं, ओके, इसमें और एस में वन के करेंसीज ज़्यादा हैं। तो आप क्या करोगे ना, आप पहले कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करोगे एस पर, सच दैट आप वन के ऑपरेशन तो कम कर पाओ एस में से, और टी में से जीरो के ऑपरेशन जीरो के अक्रेंसेस कम कर पाओ, एस में वन के अक्रेंसेस कम कर पाओ और टी में जीरो के अक्रेंसेस कम कर पाओ, राइट। सच दैट आप फाइनली क्या चाहोगे, आप फाइनली ये चाहोगे कि एट द एंड हमारा मोड ऑफ एस मोड ऑफ टी के इक्वल हो जाए। सच दैट अगर ऐसा हो गया, एक ऑपरेशन ऐसा अप्लाई करना चाहोगे सच दैट आफ्टर दैट ऑपरेशन मोड ऑफ एस और मोड ऑफ टी इक्वल हो जाए, और ऐसा हो गया तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन में ही पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग एस एंड टी को उड़ा देंगे, क्योंकि मोड ऑफ एस और टी इक्वल हो जाएगा। सो आप यही चेक करना चाह रहे हो कि एस और टी का मोड इक्वल कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, एस में से हम ज़्यादा से ज़्यादा वन उड़ाएंगे और टी में से ज़्यादा से ज़्यादा जीरो उड़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यही करते हैं कि आप टी का मोड है ना, टी का मोड आप दोनों रखो। आप ऐसा करो कि जीरो का काउंट और वन का काउंट आप इक्वल रखो। जीरो का काउंट और वन का काउंट इक्वल रखोगे तो उससे क्या होगा, उस केस में आपका जीरो भी मोड होगा, वन भी मोड होगा। उस केस में क्या होगा, आप एस में से सारे वन के करेंसीज उठा सकते हो और डिलीट कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके वन के करेंसीज जितने भी हैं ना, कितने करेंसीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे करेंसीज के करस्पॉन्डिंग आप काउंट ऑफ जीरो पता लगाओ कितने, 2 3, 3 occurrences ऑफ 0 हैं आपके इन वन के करस्पॉन्डिंग, और वन कितने हैं, 1 2 3 4 5, राइट। सो आप क्या करोगे ना कि आप जीरो, आप सिर्फ क्या करोगे कि 3 occurrences ले लो, 3 occurrences ऑफ 0 ले लो और 3 occurrences ऑफ 1 ले लो, राइट। और आप क्या करोगे, एस में से सारे आपने टोटल 6 इंडिसेस सेलेक्ट किए ना, तो आप ये जो सारे occurrences हैं इनके करस्पॉन्डिंग सारे वन ही ले लो। आप क्या करोगे, इनको डिलीट कर दो, तो आपका एस क्या बन गया, 1 1 0 0, टी क्या बन गया, 1 1 0 0 0। इसमें क्या बना था, 1 1 0 एक 0 ये भी है, ओके, ये बन गया। अब आप देख सकते हो कि दोनों में, इसमें मोड ऑफ एस क्या है, जीरो है, मोड ऑफ टी क्या है, जीरो है। अब दोनों इक्वल हैं तो आप इसको एक साथ ही पूरा सारे इंडिसेस पिक कर सकते हो और दोनों को डिलीट कर सकते हो, तो आपकी एस ओ टी एम्प्टी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा भी हो सकता था ना इधर कि अब इधर हमने क्या किया, एक्चुअली हमने क्या किया इधर, हम चाहते थे कि वन के करेंसीज हम कम कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वन के करेंसीज कम कर पाएँ फ्रॉम एस, राइट, और टी में से जीरो के करेंसीज कम कर पाएँ। तो इधर हमने क्या किया कि जीरो में तो वो केस पिक कर लिया जहाँ पे दोनों मोड हो, राइट। इसके लिए हम क्या किया, जितने भी वन के करेंसीज थे इनके करस्पॉन्डिंग 1 0 जितने भी थे इसके काउंट लिया, 1 0 का काउंट लिया, क्या लिया हमने,
काउंट ऑफ 1 0 1 काउंट ऑफ 1 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि S में 1 और T में 0, इसका काउंट। कितने पॉसिबल केस हैं? 1 2 3, राइट, ये 3 है। दूसरा हमने क्या किया, हमने 1 1 वाला केस लिया, काउंट ऑफ 1 1। इसके काउंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो आपने मिनिमम ले लिया इनका, इन दोनों में से भाई जो भी मिनिमम है ना, लेट्स से अब इस केस में क्या था, मिनिमम ऑफ 3,5, दैट इज 3। तो आप क्या करोगे, आप टी में से 3 तो 0 ले लो, राइट, जैसे आपने ये और ये ले लिया, और आप 3 1 ले लो। तो आपने 3 0 ले लिया, 3 1 ले लिया, तो इससे क्या हुआ कि टी में जो मोड होगा ना इस बार, वो 0 भी है और 1 भी है, क्योंकि काउंट ऑफ 0 एंड 1 इज इक्वल, दैट इज 3, विच यू पिक्ड। और इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि एस में आपने सारे 1 1 ही लिए हैं, राइट। सो आप इस केस में 1 1 लिए, तो आपने क्या ट्राई किया है कि 1 ज़्यादा से ज़्यादा आपने डिलीट करने की कोशिश करी है, कि एट द एंड आपके पास जो एस और टी बना, इसमें आपके जो मोड ऑफ एस है और मोड ऑफ टी इक्वल हो गया है, राइट। सो अब मान लेते हैं कि एक केस ये भी हो सकता था ना, कि जो आपने ये डिलीट करने के बाद, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, स्टिल जो मोड ऑफ एस है 1 रह गया हो और मोड ऑफ टी 0 रह गया हो। आप मुझे बता सकते हो कि मोड ऑफ टी चेंज होगा क्या इस ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद? आप बोलोगे कि नहीं होगा, मोड ऑफ टी तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 सेम सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, 3 और 3 सेलेक्ट कर रहे हो। तो काउंट ऑफ मोड ऑफ टी तो आप चेंज कर ही नहीं रहे, आप ट्राई कर रहे हो कि मोड ऑफ एस चेंज हो जाए, दैट इज ये 0 बन जाए, राइट। तो आप मोड ऑफ एस चेंज करना चाह रहे हो, तो ऐसा हो सकता था ना कि मान लो आपने 1 डिलीट तो कर दिए, ये डिलीट करने के बाद भी स्टिल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ज़्यादा रह गई हो। उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि उस केस में आप बोल दोगे कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। उस केस में आप क्या बोल दोगे कि आपका अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी मोड ऑफ एस इज स्टिल 1, 0 नहीं हुआ, उस केस में आपका आंसर नो हो जाएगा, कि आप फिर कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोड ऑफ टी तो 0 ही रहने वाला है, बट ये स्टिल 1 है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा नो। अदरवाइज अगर इफ़ यू आर एबल टू मेक मोड ऑफ एस 0, अगर आपका 0 हो जाता है ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, तो आपका आंसर येस हो जाएगा। सो हम यही करेंगे कोड में भी। लेट्स ऑल्सो सी द कोड इफ़ यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट इट। तो हम क्या करेंगे, हम यही फ्रीक्वेंसी काउंट, पहले तो फ्रीक्वेंसी काउंट रख लेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 वाले कितने काउंट हैं, और मतलब एक प्रीफिक्स सम लिया है हमने, प्रीफिक्स सम अरे। तो काउंट ऑफ 0 0 प्रीफिक्स सम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रीफिक्स सम ऑफ ऑल द अकरेंसेज ऑफ 0 0, 0 इन एस एंड 0 इन टी। ऐसे ही 0 1 प्रीफिक्स सम काउंट ऑफ 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स सम ऑफ ऑल द अकरेंसेज ऑफ 0 1। एस में आपका 0 है, टी में 1 है। सिमिलरली 1 0 और 1 1 का भी प्रीफिक्स सम हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। ये सिंपल प्रीफिक्स सम हमने कैलकुलेट किया इधर हर एक पॉसिबल पेयर का। भाई पेयर 4 ही हो सकते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमने इसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हम फाइनली जब चेक करना चाह रहे होंगे मोड निकालने के लिए, एंड दिस मिनिमम ऑफ द अकरेंसेज, देयर वी विल नीड दिस प्रीफिक्स सम, क्योंकि हमें इफिशिएंटली करना है, राइट, ऑर्डर ऑफ 1 में फाइंड करना है ये, राइट। सो अब हम इधर क्या करें, डिफ ऑफ एस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एस स्ट्रिंग में जो सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग ऑफ एस बिटवीन एल टू आर, इसमें ये वाला वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ 0, राइट।
और ये वाला वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ 1। तो बेसिकली डिफ ऑफ एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन काउंट ऑफ 0 एंड काउंट ऑफ 1 बिटवीन एल एंड आर। सिमिलरली डिफ ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट ऑफ 0 माइनस काउंट ऑफ 1 इन स्ट्रिंग टी। ओके, सो अब हमें पता लग गया कि आप एक चीज़ बताओ कि अगर दोनों के मोड सेम है, इसका मतलब इनके जो प्रोडक्ट होगा डिफ ऑफ एस इंटू डिफ ऑफ टी, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या कोई एक जीरो हो जाए। उस केस में हमारा आंसर येस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मोड इक्वल है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोड दोनों के इक्वल हैं। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोड दोनों का जीरो है, क्योंकि काउंट ऑफ जीरो ज़्यादा होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा डिफ ऑफ एस। ये नेगेटिव कब होगा, जब काउंट ऑफ 1 ज़्यादा होगा, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए, या कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो भी चलेगा। तो उस केस में हमारा आंसर येस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दोनों के मोड इक्वल हैं। अब बात आती है कि दोनों के मोड इक्वल नहीं है। ये डिफ ऑफ एस लेस देन जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 का मोड मोड ऑफ एस क्या है, 1 है। लेस देन जीरो का मतलब यही हुआ ना कि काउंट ऑफ 1 ज़्यादा है। तो डिफ ऑफ एस लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि एस का मोड 1 है, एस का मोड 1 है। तो उस केस में हमने इधर ये चीज़ सोचा ही था। हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ 1 को मैक्सिमम काउंट ऑफ 1 को मिनिमाइज करना चाहेंगे। मतलब फाइनली हम एक ऑपरेशन ऐसा अप्लाई करना चाहेंगे सच दैट मोड ऑफ एस जीरो बन जाए। इस केस में हम क्या करेंगे, एस में से तो सारे 1 सेलेक्ट करेंगे, बट जीरो में टी में क्या सेलेक्ट करेंगे, टी में हम इन 1 के करस्पॉन्डिंग 0 और 1 सेलेक्ट करेंगे सच दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इक्वल हो, राइट। सच दैट काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 इक्वल हो, और हम इनको डिलीट कर देंगे। तो टी के मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का काउंट हमने इक्वल लिया है। बट एस में फर्क पड़ सकता है। क्यों फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एस में हमने सिर्फ 1 को हटाया है। तो इधर देख लेते हैं, हमने मिनिमम चेक कर लिया कि भाई 0 और 1 का जो 1 0 और 1 1 1 0 और 1 1 का जो काउंट है इसमें से मिनिमम क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल इन दिस केस 3 और 5 था, तो हम मिनिमम वाला मिनिमम वाला पिक कर लेंगे इन दिस केस, राइट। क्योंकि हम 5 तो नहीं कर सकते ना यार, क्योंकि मान लेते हैं हमने 5 पिक कर लिया, तो आप 5 0 चाहिए आपको और 5 1 चाहिए, ये तो है ही नहीं ना, क्योंकि 0 तो आपके पास 3 है, तो आपको 3 ही लेना पड़ेगा, 3 ही 1 लेने पड़ेंगे। तो इस केस में हमने मिनिमम इधर ले लिया। अब डिफ आपका किससे इंक्रीज हो जाएगा, 2 इंटू काउंट से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने ओनली 1 हटाए हैं इधर से, 0 तो वही के वही है। तो आपने 1 का काउंट कितना हटाया है, 2 इंटू काउंट, राइट। सो आपका डिफ 2 इंटू काउंट से इंक्रीज हो जाएगा। अब आप चेक करोगे कि अगर डिफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, मतलब मोड 0 हो गया, तो आपका आंसर येस हो जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर नो हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि डिफ ऑफ एस ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, आपका मोड ऑफ 0 ग्रेटर होगा। मोड ऑफ 0 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 में एस में 0 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और टी में 1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, एस में 0 की फ्रीक्वेंसी कम करना चाहोगे। एस में 0 की फ्रीक्वेंसी कम करना चाहोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एस में तो सारे 0 पिक कर लो और टी में क्या पिक करोगे, 0 और 1 में से जो मिनिमम वाला होगा और दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी पिक कर लोगे। तो एस में से तो आपके सारे 0 के काउंट कम होंगे और टी में से इक्वल कम होंगे 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग। तो टी के मोड में, टी का मोड तो 1 ही रहेगा, बट एस का मोड 1 हो सकता है क्योंकि आप ओनली 0 रिमूव कर रहे हो। तो वही क्या है कि मिनिमम ले लिया, 0 और 1 में से जो मिनिमम हुआ वो हमने डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ओनली 0 के काउंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो 2 इंटू काउंट हमने डिक्रीज कर दिया। अगर अब डिफ ऑफ एस लेस देन इक्वल टू 0 बन गया, मतलब
मोड ऑफ एस अगर 1 बन गया तो हमारा आंसर येस हो जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर नो हो जाएगा. Okay, so this is how we can solve this problem. I hope you got the solutions corresponding to problems A, B, C, and D. If you are still not able to understand, or if you have some doubts, you can ask me in the comments. Okay, so this is it for this video. Have a nice day. Thank you.